May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Please take your seat. Thank you. आप अपूर्वा हैं. Yes, sir. ये हैशटैग मीटू क्या है? Sir, it's an online movement. It's a social media movement that expresses that actually indicates the sexual harassment that anyone has felt or anyone has dealt with it. Or harassment of any kind. आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जिसमें आप एक SDM हैं. Yes, sir. And you realize that you actually receive a complaint from a subordinate of yours. Yes, sir. And she complains that your boss, DM, is making sexual advances towards her. Okay. What are the possible options you have, and what will you do in such situation? Your boss is harassing a subordinate of yours. Sir, in that case, I will definitely ask her to go for a legal route or with some sufficient evidence. Matlab, whatever committee, we have some committee at district level or some internal committee to receive the complaint. So I will ask her to go there and provide some evidence for her claim and just start proceeding if she actually feels that was the case. But that it will amount to insubordination in the sense that you are actually instigating a subordinate employees against your own boss. But it may actually. Okay. Yes, sir. I understand that concern as well. But I think the priority, this sexual harassment is a very serious thing, and it is actually a very common at Indian workplace. So this thing cannot be ignored just because some senior boss has done that. So I will suggest her to go for the proceeding. And you won't do anything by yourself, despite the fact that you are immediate boss of us. I can go for investigation, maybe some light initial inquiry or investigation from my own side, just to check whether her claim is right or not. I can talk to some subordinates whether what she is claiming. If you realize that she is right, what will you do? So definitely I would suggest her to go for the legal route. ठीक है अपूर्वा, आप मेनली मैनपुरी से हैं. Yes, sir. मुझे इस जिले का सामान्य परिचय दीजिए. बताइए कि इसकी क्या खासियत हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से. मैनपुरी मेनली वेस्ट यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है और मैनपुरी में मेनली इफ वी गो फॉर इकोनॉमिक टर्म्स, तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स tobacco production. And apart from that, this is a very old constituency, not a new one. It was earlier a larger one, then it got divided into subparts. Firozabad also, it was, taken out of it. भौगोलिक रूप से क्या इसकी विशेषताएं हैं? It comes under a plain area only. ये जो उत्तर प्रदेश में दोआब का इलाका है, गंगा यमुना के बीच का इलाका है खास तौर से, इसका उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है, क्या महत्व है? सर, गंगा यमुना दोआब की वजह से यहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत है. माना जाता है कि इस दोआब की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम है. Yes, sir. आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है और उत्तर प्रदेश में अफॉरेस्टेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? फार्मिंग के लिए हमें लैंड चाहिए होती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस, यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन जो हम बोलते हैं वो है, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी लैंड क्लियरेंस करा हुआ है. इस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो केवल 7% ऑलमोस्ट जो हमारे टोटल एरिया का है. तो नेशनल एवरेज क्या है? इट्स ऑलमोस्ट 21% इफ वी गो बाय ट्री, इफ वी इंक्लूड ट्री कवर, तो नेशनल एवरेज इज 24% ऑफ टोटल एरिया. सो दिस वन इज वेरी लेस फॉर यूपी. तो एफॉरेस्टेशन इज डेफिनेटली अ रिक्वायरमेंट फॉर अस. तो उसके लिए जो हम जो फॉरेस्टेशन ड्राइव्स करते हैं जिले के स्तर पे, वो सब ज़रूरी होगा. और हमें स्कूल लेवल पे भी बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट इम्प्लांट एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के लिए. अगर हम कुल मिलाकर पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और इस तरह की समस्याओं को देखें और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका देखें, तो उत्तर प्रदेश इसमें सहायक है या दरअसल एनवायरनमेंट के खिलाफ एक जगह है? अगर हम पूरे उसमें दुनिया के मैप में देखें तो ये एक ब्लैक स्पॉट है या एक ग्रीन स्पॉट है? एक्चुअली क्लाइमेट चेंज में मीथेन का भी बहुत रोल है.
मीथेन प्रोडक्शन, और वो धान की खेती से काफ़ी होता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे यहाँ धान की खेती काफ़ी होती है यूपी में, तो उसकी वजह से वी कैन से कि एक कंट्रीब्यूटर है ये क्लाइमेट चेंज के लिए। बट वी शुड नॉट सी इन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज फार्मिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू फीड आवर नेशन, टू फीड आवर पीपल। तो फार्मिंग भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन हमें वो जो बैलेंस मेंटेन करना है फॉरेस्टेशन वाला, वो हम मेंटेन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। दैट ठीक है अपूर्वा, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए अपूर्वा, बैठिए। थैंक यू सर। अब बाय एंड लार्ज अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को तो इंटरव्यू कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम आई कांटेक्ट आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट, लेकिन अदरवाइज वॉइस लेवल अच्छा है, कम्युनिकेशन कुल मिलाकर फ्लो अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, एंट्री एग्जिट भी अच्छी है, सो बाय एंड लार्ज हैंड मूवमेंट एंड ऑल, सो जितना नॉन वर्बल कंपोनेंट है अच्छा है, वर्बल कंपोनेंट भी अच्छा है। यस, आई कांटेक्ट इज़ अ प्रॉब्लम, जिसमें दिक्कत ये है कि आप बहुत बार नीचे देख रहे हैं और बहुत बार ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। सी व्हाट वी जनरली सजेस्ट इज आपका आई कांटेक्ट स्पेशली थोड़ा सा डेविएट हो जाता है जब आप सोच रही होती हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि वैसे तो आप 1-to-1 आई कांटेक्ट रखिए, अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो आप मुझे देखिए, मेरी आंखों को देखिए। होता ये है कि आई होप यू रियलाइज दैट कम्युनिकेशन में ट्रस्ट बिल्डिंग का काम आइज का होता है, ठीक है ना। सो इफ यू आर सेइंग समथिंग एंड यू want to get feedback whether I am convinced or not, the best way is to look into my eyes, and so is the case vice versa. अगर मैं आपकी ईमानदारी जांचना चाहूँगा तो मैं आपकी आंखों से ही इसका अनुमान लगाऊंगा। सो सजेशन ये है कि आप 1-to-1 आई कॉन्टैक्ट रखिए, अ ग्लांस हियर एंड देयर विल नॉट हर्ट, लेकिन बाय एंड लार्ज 1-to-1 रखिए, नथिंग अदरवाइज। बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा है। एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी गुड। फैक्चुअल जो एरियाज आपको पता लग गए होंगे कि किन एरियाज को थोड़ा सा और ब्रश अप करना है, वो आप देख लेंगे। सो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स रियली गुड। Thank you so much, sir. All the best. Thank you so much. Thank you, sir.